بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ابو مصطفیٰ اپنا اسلام آباد ٹی وی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم آئے ہیں تحصیل کوٹلی ستیاں کے علاقے کرور میں، جہاں کے گراؤنڈ بہت مشہور ہیں کرکٹ کے لیے، اور اس وقت جہاں پہ ہم موجود ہیں وہاں بھی ایک کرکٹ ٹورنامنٹ ہو رہا ہے۔ تو یہ تقریباً اسلام آباد سے 1 گھنٹے کا راستہ ہے یہ، اور بڑا خوبصورت ٹورنامنٹ ہے، صغیر میموریل کرکٹ ٹورنامنٹ ہو رہا ہے یہ، اور اس میں تحصیل کوٹلی ستیاں لیول کا ٹورنامنٹ ہے۔ اس میں تقریباً 16 ٹیموں نے حصہ لیا ہے۔ 2 دن ٹورنامنٹ ہوا یہ 17 اور 18 جون کو۔ پہلا ایک گروپ کے کل میچز ہوئے، ایک گروپ کے آج میچز ہوئے، آج انشاءاللہ فائنل بھی ہوگا، اور ایک بڑا انعام ہے یہاں پہ 1,30,000 کا۔ تو یہ آپ گراؤنڈ کا ویو اگر آپ کو دکھا دیں، اب گراؤنڈ کے ویو آپ نے دیکھ لیا۔ اس کے بعد ہم جو ہے یہاں پہ جائیں گے گراؤنڈ میں، مختلف جو کھلاڑی ہیں بڑے دور دور سے آئے ہوئے ہیں، اور ان کی رائے لیتے ہیں گراؤنڈ کے بارے میں اور ٹورنامنٹ کے بارے میں کہ وہ کیا رائے رکھتے ہیں اس کے بارے میں۔ چلیں چلتے یہ کھلاڑی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ذرا گراؤنڈ کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ جی بھائی، کیا نام ہے آپ کا؟ اطہر نام ہے جی اطہر بھائی، آپ آئے یہاں پہ کھیلنے کے لیے، آپ نے اس ٹورنامنٹ میں حصہ لیا تھا؟ جی ہم کل کھیلے تھے یہاں پہ، تو بس بیڈ لک تھی، ہم ہار گئے میچ، لیکن یہ ہے کہ بہت اچھا ایونٹ ہے۔ ہم انتظامیہ کو جو ہے وہ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ایسے ایونٹ جو ہے وہ بہت کم ہی ہوتے ہیں یہاں پہ، کہ یہاں کی کرکٹ تو ختم ہو چکی تھی، تو ان کی بہت کوششوں کی وجہ سے یہ دوبارہ پھر ایک بال ہوئی، ہم سب ان کو سپورٹ کرتے ہیں، تو بہت اچھا ایونٹ ہو رہا ہے۔ تو گراؤنڈ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کیسا گراؤنڈ لگا آپ کو؟ گراؤنڈ کے بارے میں جہاں تک ہم آپ کو بتائیں، تحصیل مری اور تحصیل کوٹلی ستیاں میں شاید اس سے اچھا کوئی گراؤنڈ کسی جگہ پہ ہو، کیوں ہم نے کوٹلی میں بھی بہت کرکٹ کھیلی ہے، مری میں بھی بہت کھیلی ہے، لیکن ایسا گراؤنڈ ہم نے شاید اس ٹائم تک کوئی دیکھا ہو کوئی بھی نہیں ہے۔ گراؤنڈ بہت اچھا ہے، اس کو آگے مینٹین رکھنے کی بات ہے، جتنا رکھیں گے تو یہ چلتا رہے گا، لیکن ایسا گراؤنڈ ہم نے تحصیل مری اور تحصیل کوٹلی ستیاں میں اس سے پہلے کوئی بھی نہیں دیکھا۔ اچھا، اس وقت اسرار بھائی موجود ہیں، اوپن پلیئر ہیں، کافی مشہور کھلاڑی ہیں، اور یہ کرکٹ میں جو ان کو پھندو کے نام سے جانا جاتا ہے، تو ان سے بھی ٹورنامنٹ کے بارے میں پوچھتے ہیں کیسا لگا وہ ٹورنامنٹ؟ جی السلام علیکم۔ الحمدللہ سب سے پہلے تو سب بھائیوں کا شکر گزار ہیں جنہوں نے آپ نے قیمتی ٹائم نکال کے ہمارے پاس آئے۔ تو اوور آل دیکھا جائے تو گراؤنڈ آپ کے سامنے ہی ہے، جتنا مطلب خوبصورت گراؤنڈ ہے یہ اوور آل تحصیل کوٹلی ستیاں اور مری میں اس کے ساتھ کا گراؤنڈ کوئی بھی نہیں ہے اتنا پیارا، مطلب جس طرح گراؤنڈ ہے گھاس ہے ویسے اوور آل جو ہے گرینٹی پوری دے رہا ہے گراؤنڈ، ایسا گراؤنڈ اوور آل اس پورے ایریا میں نہیں ہے۔ یہاں پہ مزید کھلاڑی موجود ہیں، ان سے بھی ہم بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم بھائی جان، کہاں سے ہیں آپ؟ جی علی پور سے۔ علی پور سے۔ تو آپ گراؤنڈ میں کیسا لگا آپ کو؟ جی اچھا لگا، کافی انوائرمنٹ اچھا ہے یہاں، تحصیل کوٹلی ستیاں کے سب سے اچھے گراؤنڈ میں سے ایک ہے یہ۔ ویسے گراؤنڈ میں تو آپ کو پتہ ہے ادھر آڑے وغیرہ ہوتے ہیں، لیکن یہ پورا گراؤنڈ ہے یہاں، تو کرکٹ بھی اچھی ہو رہی ہے، 7 اوور کی کرکٹ ہے، تو اچھا لگا آ کے۔ تو یعنی کہ اس طرح کے ٹورنامنٹ ہونے چاہیے جو پوری اس میں کھیلنے کا موقع ملے۔ عموماً ہوتے ہیں 2-3 اوور ٹورنامنٹ، تو کھلاڑیوں کو اپنی پوری جو پرفارمنس دینے کا موقع نہیں ملتا، تو آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح ٹورنامنٹ مزید ہوں یہاں پر؟ جی لازمی بات ہے، آپ 11 سائڈ ٹورنامنٹ ہوتا ہے، اتنا خرچہ کرتے ہیں، تو ٹورنامنٹ میں 5 سے 6 اوور ہونے چاہیے۔ ویسے جہاں بھی دیکھا جائے 3 اوور ہوتے ہیں، 4 ہوتے ہیں، مغربی وقت میچ ہوتا ہے تو پھر 2-3 بال کے ہو جاتے ہیں، یہاں 7 اوور کی پوری کرکٹ ہے، کافی اچھا لگا آ کے یہاں کھیلا ہے، اور کرور میں کئی دفعہ یہاں آیا ہوں تو کافی اچھا انوائرمنٹ ہے۔ ایک ٹیم یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے، یہاں پہ ان سے پوچھتے ہیں کیا ہوا ان کا۔ جی السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں، خیریت سے؟ شکر اللہ پاک۔ کون سی ٹیم تھی آپ کی؟ کنگ 402 وغیرہ کیا بنا آپ نے؟ آرمی پہلا میچ تو نہیں ہارے نا؟ پہلا میچ ہی ہار گئے۔ چلیں کوئی نہیں، ایک ٹیم نے ہارنا ہے ایک نے جیتنا ہے، تو پرفارمنس تو ٹھیک رہی تھی، آپ نے میچ دیکھا تھا، لیکن چلیں سنا پچ بھی کافی لمبی تھی۔ ہاں وکٹ تو کافی لمبا تھا، اس میں جو بال بھی بڑا تھا، یہ میرا خیال ہے بیٹسمین ٹورنامنٹ ہے، بالر ٹورنامنٹ نہیں ہو سکتا یہ۔ نہیں یہ تو ہے کہ ٹھیک ہے، اچھا یہ آپ سے ایک اور چیز پوچھتے ہیں، یہ کوچ ہیں جناب ان کے؟ ہمارے مینٹور ہیں، مینٹور بھی ہیں، کوچ بھی ہیں، مینیجر بھی ہیں، کپتان بھی، سب کچھ یہی ہیں ان کے۔ نام کیا بھائی آپ کا؟ خضر یاد سر۔ خضر یاد، نام بھی بڑا پیارا ہے ان کا، خضر پتہ ہی آپ کو لوگوں کو راہ دکھاتا ہے، تو یہ لوگ کرکٹ میں لوگوں کو راہ دکھا رہے ہیں، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ اس گراؤنڈ میں یہ کیسا لگا ان کو؟ جی ماشاءاللہ بہت اچھا گراؤنڈ ہے، انتظامیہ کی بڑی اچھی ایفرٹ ہے اور بڑا اچھا ایونٹ کرایا، اور پراپر کرکٹ ہو رہی ہے یہاں پہ 7 اوور کی۔ جی وہی بڑے سے بات دیکھا ہے ایسے ٹورنامنٹ جتنا بڑے اوور کا ہوا ہے، ورنہ 2-3 اوور ہوتے ہیں، کھلاڑیوں کو موقع نہیں ملتا، تو آپ کے جیسے اس طرح ٹورنامنٹ مزید ہونے چاہیے۔ جی جی بالکل، جو کرور میں جو کرکٹ تھی نا، وہ کرور کے لوگ جو نا اوپن کرکٹ کی طرف جا رہے تھے، لیکن ابھی لوکل کرکٹ کی جانب آئے ہیں، بڑا اچھا ایونٹ کرایا، اور جو انتظامیہ جو ہے بالکل مبارکباد کے مستحق ہے، بہت اچھی کرکٹ ہوئی ہے جی، مزہ آیا بالکل۔ باقی اچھا میں نے دیکھا نہیں، یہ تو کافی مشہور و معروف ہے۔ تشام بھائی کیسے ہیں آپ، خیریت سے ہیں؟ شکر اللہ کا۔ اچھا میں جب یہاں پہ آیا میں یہی سوچا تھا تشام سے نظر نہیں آ رہے،
तो वो पता लगे पहला मैच हारी, हालांकि मुझे नहीं लगता था कि इनकी टीम ये मैच हारेगी, उम्मीद ये थी कि ये टीम फाइनल तक पहुंचेगी। तो शाम भाई क्या वजह थी? बस यार पहला मैच ही तगड़ा था और बस अच्छा खेल के हमसे तब जीत गया, हमारी कुछ गलतियां हैं उनकी वजह से। चलें गलतियां तो लगी रहती हैं, एक टीम ने हारना है एक टीम ने जीतना है। बाकी ये कि मुमताजुल मैं जब हम खेलते थे ये उस वक्त छोटे छोटे होते थे जब हम क्रिकेट खेलते थे, तो जब यहाँ पे आके काफ़ी से बात देखा इनको पता लगा ये तो बड़े प्लेयर बन चुके हैं। तो आपको तो शायद याद भी नहीं होगी हमारी कि हम आपके साथ खेलते थे, कोई पता नहीं क्योंकि हम इतने अच्छे खिलाड़ी नहीं थे इसलिए। चलें उम्मीद है जी आपने हमारे तहसील का नाम रोशन किया, आप ऑल ओवर पाकिस्तान जब खेलते हैं। तो साकिब भाई हमारे साथ मौजूद है, सीडीए की टीम में खेलते हैं आप? मैं जीएसक्यू में जॉब करता हूँ और शुरू से हमारा जो है ना एक हॉबी रही है क्रिकेट की, जो बचपन से हम लोग अपनी तहसील में भी खेलते रहे और पहले इस्लामाबाद भी हम लोग क्रिकेट खेले। तो किस इलाके से हैं आप? हम लोग कोटली सतिया दुरनैया के गांव से हैं। दुरनैया, जी बिल्कुल नाम सुना है दुरनैया का। तो कैसा लगा ग्राउंड आपको ये? सर माशाल्लाह हमारी जो है ना पूरी तहसील में हम पहली दफ़ा यहाँ पे इस ग्राउंड में आए, हालांकि इससे आगे चलासी वाला ग्राउंड है या करोर वाला ग्राउंड है, वहाँ पे हम लोग काफ़ी दफ़ा खेले, लेकिन बाय गॉड हम लोग यहाँ पे आए हैं और हमें वाकई में लगा कि ये तहसील का बहुत अच्छा ग्राउंड है। इंतज़ामिया ने बहुत अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ कराया, एटलीस्ट 7 ओवर की क्रिकेट खेलने को मिली है। हम इससे पहले कुछ टूर्नामेंट खेले हैं जो 3-3 दिन के टूर्नामेंट थे और लास्ट में जाके ना वो 4-4 बॉल्स के उन्होंने फ़ाइनल करवाए, जो कि मैं समझता हूँ कि किसी भी टीम के साथ ना एक नाइंसाफ़ी वाला मामला है। तो 7 ओवर की क्रिकेट है, हमने अपनी तरफ से अच्छा खेला, 161 का टारगेट हमने काफ़ी बड़ा टारगेट सेट किया, लेकिन दूसरी टीम भी हम पल्ला थी और उसने बहुत अच्छा खेला। वो कि 2-3 चांस मिले, पार्ट ऑफ गेम है कि हार जीत तो लगी रहती है, आपको पता ही है। लेकिन हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा टीम्स के लिए भी परेशानी की बात यह है कि इतना बड़ा टारगेट चेज़ करवाना और उसके बाद जो है ना ग्राउंड में ही बैठे रहना, ये बड़े हौसले की बात है। इस ग्राउंड में खाने पीने का बंदोबस्त पूरा है, ये देख रहे हैं अब यहाँ पे पानी भी मिलेगा, वो खाना भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, क्योंकि सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। ये कि हमारे यहाँ आरजे बासी बड़े मशहूर मारूफ हैं, FM पे होते हैं आज जी। बासी भाई कैसे हैं, खैरियत से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए तमूर भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। तो बात सुनाएं आपके कि FM कैसे चल रहा है? भाई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। सबसे पहले जी आपको मुबारकबाद पेश करते हैं कि इतना अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया आप लोगों ने, तो उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम भी आप इस तरह टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, तमूर पे इंतज़ामिया की काविश थी और बड़ी अच्छी काविश थी। और जिस तरह का टूर्नामेंट 2 दिन का टूर्नामेंट था, 60 ओवर का हमने क्रिकेट खिलाई, सो एक लंबी क्रिकेट खेली और लागे के लोगों को बड़ा अच्छा खेलने का मौका मिला। सो बड़ा अच्छा टूर्नामेंट रहा है। मैंने खुद कमेंट्री की वहाँ पे बैठ के, सो ऑफिशियल कमेंटेटर थे जेबी भाई, जेबी बासी साहब के साथ मैंने कमेंट्री की, सो बड़ा अच्छा लगा। हाँ जी, ऐसे बड़ा टूर्नामेंट हो तो कई लोग आते हैं तो आपको मज़ीद एक्सपीरियंस मिलता है, इससे खुल के आपकी जो है सब सामने आता है। तो बहुत शुक्रिया जी, आपने बड़ा अच्छा टूर्नामेंट करवाया है यहाँ पे। बाकी अच्छा जी, हमारे साथ एक और इस इलाके के मायनाज प्लेयर मौजूद हैं, साद नाम है इनका, बगे से ताल्लुक़ है, जंग रहायश है इनकी, ओपन खेलते हैं, काफ़ी दूर जाके खेलते रहे यहाँ पे, तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। इनसे पूछते हैं कि यहाँ पे आए इनको ग्राउंड कैसा लगा? जी ये अस्सलाम वालेकुम, पहले तो मैं अपने देखने वालों को सलाम पेश करना चाहूँगा, और दूसरी बात ये कि ये जो है वादी करोर का बहुत अच्छा ग्राउंड है। ऊपर कोटे सत्तियाँ साइड भी काफ़ी मैच होते हैं, लेकिन उस तरफ हमें ऐसा ग्राउंड देखने को नहीं मिलता। ये इस एरिए में जो है बहुत ही अच्छा जो है ना इन करोरों ने सेटअप किया और बहुत ही अच्छा ग्राउंड है। अच्छा, बगे सुना एक बड़ा अच्छा ग्राउंड बना है, तो क्या फुटबॉल का क्रिकेट का? नहीं, वो है फुटबॉल का हो गया और वॉलीबॉल वगैरह इसका ग्राउंड है। चलिए उम्मीद करते हैं यहाँ पे कोई अच्छा गवर्नमेंट तवज्जो दे, देखें कितनी ज़बरदस्त जगह यहाँ ग्राउंड बनाना जो प्रॉपर अच्छा ग्राउंड बन सकता है क्रिकेट का यहाँ पे। बाकी आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही पहले मैच में? ठीक रही है, अच्छी रही है अल्हम्दुलिल्लाह, गुजारा हो गया, तो आगे भी बस आपकी दुआओं की ज़रूरत है। तो आगे तक जी हमारी सपोर्ट है आपके साथ कि आप ये टूर्नामेंट विन करें और अपने इलाके का नाम रोशन करें और अपना नाम भी रोशन करें। वैसे भी आप काफ़ी अच्छी गेम खेल रहे हैं, तो हम चाहते हैं आपको मज़ीद आगे देखना कि आप आगे जाएँ, ऑल पाकिस्तान लेवल पर खेलें ताकि इस इलाके का नाम बने। बाकी साहब भी आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और उम्मीद करते हैं आप जो नेक्स्ट मैच भी जीतें और फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएँ आप लोग। मौजूद हैं हाफिज़ मुदस्सिर साहब, चावा से ताल्लुक़ है इनका, इनकी टीम भी मैच खेली थी, इनसे पूछते हैं क्या बना आपके मैच का? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बैड लक हुई है, असल में यहाँ पे जो कंडीशन थी हमारी टीम उसको समझ नहीं सकी सही तरह से, क्योंकि यहाँ पे हमारी टीम जो है स्लोअर को ज़्यादा अच्छा खेलती थी, वो ज़्यादा हमारे पास जो है फास्ट बॉलर खेलने के लिए प्लेयर मौजूद नहीं थे, तो इस वजह से प्रैक्टिस भी नहीं थी, सारे जो है जॉब करने वाले बंदे,
तो बस यहाँ की लोकल क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए उन्होंने टीम बनाई थी, तो बस उस प्रमोशन के लिए खेलें। बाकी बैड लक, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह पूरी एफर्ट के साथ आएंगे, पूरी टीम मैनेजमेंट के साथ आएंगे, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह इसको जो है वो अपनी कमज़ोरियों को दूर करें। बॉलिंग हमारी अच्छी रही, लेकिन बैटिंग में जो है वो हमारी पहले ओवर में 3 विकेटें गिरने से जो है काफ़ी नुकसान हुआ। अच्छा, बाकी ये कि बड़े अरसे बाद इस इलाके में मतलब इतने बड़े ओवर का टूर्नामेंट होगा ना, 2 ओवर 3 ओवर का टूर्नामेंट होता है, तो इससे आप क्या समझते हैं कि जो खिलाड़ी हैं उनको सही अपने जो टैलेंट है वो दिखाने का मौका मिलता है आप मैच? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो बहुत अप्रिशिएट करूँगा ये जो इंतज़ामिया उन्होंने इतने ज़बरदस्त टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया है। उन्होंने पहले ऐसे होता था कि यहाँ पे लोग पैसों के लालच में बड़ी बड़ी जो है वो टीमें रखते थे, बहुत ज़्यादा टीमें रखते थे, जिसकी वजह से जो है वो टूर्नामेंट 1 ओवर 2 ओवर का, इवन कि कई बार फाइनल जो है टॉस पे होता था। लेकिन इन्होंने तमाम जितने भी बॉलर्स थे, बैट्समैन थे, सबको भरपूर मौका दिया। जैसे कि आप हमारी टीम की बात करें तो हमारे जो है वो 8 यानी कि बैट्समैन गेम खेलने के लिए 7 ओवर की वजह से, तो इसी वजह से यानी कि टूर्नामेंट फ़िलहाल जो है मेरे ख्याल में बहुत बेहतरीन है। इस हिस्ट्री में, जो करोर की हिस्ट्री में जो टूर्नामेंट जा रहा है, इस लिहाज से बहुत बेहतरीन जा रहा है माशाल्लाह से। तो अल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम जानजेब भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है। जानजेब भाई, क्या बना आपकी टीम का? जी, बैड लक हुई हमारी टीम के साथ। अनफॉर्चुनेटली बॉलिंग में हम वो सक्सेस नहीं हासिल कर सके जो हमें करनी चाहिए थी। थोड़ा सा लैक ऑफ बॉलिंग कह सकते हैं आप, जिसकी वजह से हम ये मैच लूज़ कर गए। चलिए, कोई ना कोई एक बीच में बंदे कमी रह जाती, तभी तो दूसरी टीम हावी होती है आप लोगों पे। लेकिन टीम तो काफ़ी आपका स्कोर तो अच्छा कर गई थी। तो बॉलर तो आपके पास मौजूद है शायद, तो क्या बॉलर ने क्या दिया, क्या वजह है, क्यों बॉलिंग सही नहीं हुई उसकी? बस अपनी लाइन और लेंथ को मिस कर गए, जिसकी वजह से बैट्समैन ने भरपूर फ़ायदा उठाया। वरना टारगेट जो है वो कोई आसान नहीं था, एक अच्छा टारगेट सेट हो गया था। तो उसके बाद यकीनी तौर पे जीत हमें नज़र आ रही थी, लेकिन 2 ओवर ऐसे गुजरे कि उनकी वजह से मैच हमारे हाथ से। और रंजीब भाई, काफ़ी अर्से बाद यहाँ पे मतलब इतना अच्छा टूर्नामेंट हो रहा है कि 7-7 ओवर का, वरना जब भी यहाँ पे हुआ 2-2 ओवर का हुआ है मैच, और वही 2 बैटिंग भी वही करते थे, बॉलिंग भी वही करते। तो क्या समझते, इससे अच्छा है, सबको टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा? जी बिल्कुल, ऐसे ही टूर्नामेंट होने चाहिए, क्योंकि जब तक आप प्रॉपर क्रिकेट नहीं खिलाएंगे उस वक्त तक आपको टैलेंट जो है ना आप उभर के सामने भी नहीं आएगा। और आज देखें ये 7-7 ओवर के हो रहे हैं, तो कितने बैट्समैन को मौका मिल रहा है और कितने बॉलर्स को मौका मिल रहा है, तो इसी तरह पता चलेगा कि पीछे कौन कौन से छुपे हुए हैं। वरना तो आपके शॉट वो जो हो रही थी 2 से 3 ओवर का, तो उसमें 1 बैट्समैन या 2 बैट्समैन लेके टीमें खेल रही होती हैं, तो वो प्रॉपर टीमें नहीं बनती। वो फिर एक आप कह सकते हैं कि 2-4 लेके बस एक टीम बना दी, तो वो टीम नहीं होती प्रॉपर क्रिकेट। तो ये है, जब 7-8 ओवर खेलेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या टीम है और क्या उसकी परफॉर्मेंस है। बाकी ऐसा इससे है कि नया जो टैलेंट है वो भी सामने आता है, वरना सारी उम्र वही खेलते रहते हैं। नए बेचारे तो बाहर ही बैठते हैं मेरी तरह जो है, फिर ये माइक उठा के इंटरव्यू ही कर रहे होते हैं वो लोग। तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो टैलेंटेड है वो तो डेफिनेटली आगे आएगा ही आएगा, जब वो शो करेगा अपनी गेम तो आएगा ही। लेकिन टाइम बहुत लग जाता है फिर उसको। टाइम तो आपको पता है, क्रिकेट हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा क्रिकेट ही खेली जाती है, तो इसमें फिर टाइम तो लगता ही है। जब इतने लोग क्रिकेट खेलेंगे तो फिर टैलेंट को हंट करते करते भी टाइम लग जाता है, तो कई दफ़ा ज़्यादती भी हो जाती है कई प्लेयर्स के साथ। तो मगर मैं नहीं समझता कि यानी कि वो प्लान ज़्यादती होती है, वो अनफॉर्चुनेट होती है किसी न किसी की। बाकी टैलेंटेड आप देख लें कि कितने उभर के लड़के आए हैं यहाँ। आज के टूर्नामेंट को ही आप ले लें, 2 दिन में कितने प्लेयर्स हैं जिनको हम नहीं जानते और उन्होंने आके परफॉर्म किया। अब हम उनको देख सकते हैं कि कितना अच्छा खेल रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है मज़ीद इस तरह टूर्नामेंट होंगे और जो यहाँ इलाके में कि नेक जो टैलेंट है वो उभर के सामने आएगा। ये हमारे साथ मिठू भाई मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि बॉलिंग परफॉर्मेंस आज कैसी रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बॉलिंग परफॉर्मेंस मेरी अच्छी नहीं रही, लेकिन कोशिश है हमारी कि अगले मैच में हम इसे बेहतर बॉलिंग करूँगा और अपनी बॉलिंग को बेहतर करूँगा इससे। नहीं, वैसे आपको डिसाइड होने की ज़रूरत नहीं, इस टूर्नामेंट में काफ़ी बॉलर ने 6 छक्के खाए हैं, आप अकेले नहीं हैं उसमें। और ऐसा नहीं है कि बॉलर के छक्के, स्टुअर्ट ब्रॉड का आप जानते हैं 6 छक्के खाए थे उसने, लेकिन कितना अर्था नंबर 1 बॉलर रहा है वो, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये काफ़ी अच्छे, मतलब ज़्यादा मिठू का नाम जब बैटिंग में मशहूर है, बॉलिंग में ठीक अच्छी करते हैं,
تو بیٹنگ کا بھی کیسی رہی؟ بیٹنگ تو الحمدللہ اچھی رہی ہے, ہم نے اچھا سکور دیا ہے دوسری ٹیم کو, لیکن بولنگ میں ہماری تھوڑی پرفارمنس لو رہی ہے جس کی وجہ سے ہم میچ ہار گئے. چلیں یہ کوئی انشاءاللہ امید کرتے ہیں نیکسٹ ہمارے یہ میٹھو اوپن پلیئر ہیں یہاں کے کافی دور دور جا کے کھیلتے رہے ہیں, امید کرتے ہیں نیکسٹ اچھی پرفارمنس دیں گے, اپنی ٹیم کو جی سے امکنار کریں گے. بہت شکریہ. That's a mighty ball. That's a huge one. Left a bowler. Good shot, good shot, good shot. Nahi, chakka, chakka, chakka. Chakka. Sadar Bazar Ravi Fendi se dil maat ke baad hamaara kar. अच्छा शॉट है, सामने मौजूद है. राजा बादशाह की बॉलिंग के निशान से. इस बार यहाँ पर अच्छा शॉट है. अगला बॉल करवा चुके, क्या होगा इस बॉल पे? अच्छा से परहेज करना होगा. मैन ऑफ द टूर्नामेंट तो मोबिन सकते हैं. फातिमिया चन्नू का कद भी आपने देखा और इनका कद भी आप देख रहे हैं. बेस्ट ऑलराउंडर ऑफ द टूर्नामेंट वन एंड ओनली आदिल वकार. लेकिन जबरदस्त और शानदार इन्होंने क्रिकेट खेली, तो तालियां बनती हैं आदिल वकार के लिए. बस इनसे मैं एक चीज की गुजारिश, बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट कासिम नेत्रान. बड़ा अच्छा, बड़ा खुश इखलाक प्लेयर है, तालियों की आवाज आनी चाहिए कासिम नेत्रान के लिए. तो मैचेस में बड़ी जबरदस्त, बड़ी शानदार बॉलिंग की है. 7 बग्गा फलक से अब बग्गा की जानिब से आपके लिए कैश प्राइज है. जरा वही पीछा जुलो, तालियों की आवाज. 40,000 रुपए की इनामी रकम और साथ में जाएगी रनर अप ट्रॉफी. साइम नवर वगल टीम कप्तान बाऊ नुमान अकील सत्ती, जो हारिस ट्रॉफी पाकिस्तान टीम में खेल रहा था, वो भी नुमान अकील सत्ती की टीम में खेल चुका है. तो एक बार तालियों की आवाज आनी चाहिए साइम नवर वगल के कप्तान के लिए. इसके बाद चैंपियन टीम सगीर क्लब तो तालियों की आवाज आनी चाहिए फलक के लिए. 80,000 रुपए, 80,000 रुपए.